Namaskar. I welcome you all in our today's session. So far, we have discussed many topics in our course, which is political theory. Today, we are going to discuss a very important topic, which is the need and importance of political science. Well, हम जब किसी भी कोर्स की हम बात करते हैं, whenever we talk about any course, so it is very much imperative for us to know the importance and need of that particular course, why we are going to discuss that, what is the utility of that particular course in our life. ठीक है, every subject you talk about, any subject which is, let's say, zoology, botany, zoology, environmental science, history, geography, English, mathematics, whatever, many subjects are there, many courses are there, but and each and every course has got its own benefits, own need and importance. Same way, political science also has got a huge importance, utility. So we'll go through the entire contents in today's sessions. I'll make you understand about the need and importance of political science, all the headings I have got. I hope you will enjoy the session. But before I proceed, मैं सिस्टमेटिक वे में इसको एक्सप्लेन करूँ, हेडिंग या वन बाय वन इसको आगे चलूँ. इफ एनीवन आस्क यू कि भाई इसकी पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हालांकि एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं इस तरह से, इट स्कोर्स 10 मार्क्स क्वेश्चन. बट आप बोलेंगे कि हाँ सर, पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ते हैं, तो इसकी एकेडमिक यूटिलिटी है बहुत, किसी भी एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में हम बैठे हैं तो पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज होनी होनी चाहिए. इसके बाद भी हमारे जो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो पावर है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पॉलिसीज मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग करने के बाद जो उसका एग्जीक्यूशन है, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रिलेशंस हैं स्टेट के बीच में, या फिर मैं बोलूँ स्टेट और पब्लिक के बीच में सामंजस्य है, एडजस्टमेंट है. प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं, ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत जो भी वेरियस फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हो रहा है, तो सभी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल साइंस की जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी नीड है, बहुत ही ज़्यादा इनएविटेबल है. टुडे वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. So I request you all to please pay attention whatever I share with you. So political science is a crucial for understanding the complexities of governance, power, and human interactions within a political context. Its importance can be discussed on the basis of the following points. Okay. So the importance and need of the political science will be discussed on the basis of those points which I'll be discussing with you within this 20 or 30-minute session. So number one, understanding governance and power. Analyzing government structures, बात करते हैं benefit की. If I talk about the analyzing government structures, what it includes, political science provides in-depth knowledge about various government forms, their organizational structures, and operational mechanism. This understanding is essential for grasping how states functions and maintain order. तो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स जो पहली चीज हमारे दिमाग में आती है, गवर्नमेंट, गवर्नेंस. तो उसकी कार्यप्रणाली को जानना, उसकी पॉलिसीज को जानना, उसकी पावर को जानना, गवर्नमेंट के अंतर्गत विभिन्न जो इंस्टीट्यूशन उसको जानना. गवर्नमेंट की बात में करें तो जिसका बाइफर्केशन है, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर मैं बात करूँ इसका लोकल गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत रिलेशंस को जानना, उनकी पावर को जानना, डिस्ट्रीब्यूशन को जानना, कार्यप्रणाली को जानना, ये सब चीज हम पॉलिटिकल साइंस, या मैं बोलूँ पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू नो, टू गो थ्रू ऑल दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. ओके. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर. It examines how power is distributed among different branches of government and between various levels of government, like local, state, or federal. This helps in understanding checks and balance and the prevention of power concentration. तो अभी मैंने जैसे बात करी कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें,
तो जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल, स्टेट या फेडरल, लोकल लेवल पर, उसके बारे में भी हमें बहुत नॉलेज मिलती है कि किसकी कार्य प्रणाली कैसी है, किसका कार्य क्षेत्र कैसा है, किस स्टेट पर कौन सी गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज बनाएगी, कैसे इस पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, वो बात सही है कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर स्टेट गवर्नमेंट या उससे ज्यादा है, तो एक ताकि एक इसका भी एक अलग से एक पहलू है कि ताकि एक यू नो एक कोई वॉच रहे लोकल और स्टेट या फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। वी मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग एज फार एज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न, दैट इज enhancing civic engagement and democracy. What it says, promoting informed citizenships. Promoting informed citizenships, political science educates citizens on their rights and responsibilities, enhancing their ability to participate effectively in democratic process such as voting, public debates and advocacy. तो जैसा कि मैंने बात करी कि जो पॉलिटिकल साइंस है, इट आल्सो मेक्स अस अवेयर अबाउट आवर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए, एक बड़ी छोटी सी बात है, कभी भी हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों की टेंडेंसी की वो अधिकारों की बात करते हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट देयर राइट्स, बट ऐसा नहीं है। हमें जितना नॉलेज अपने राइट्स के बारे में, उतना हमें अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी होना चाहिए। वी हैव गॉट सम ड्यूटीज ऑल्सो टुवर्ड्स आवर नेशन, टुवर्ड्स आवर सोसाइटी। तो पॉलिटिकल साइंस इन चीज के बारे में भी हमें कह लीजिएगा, इट प्रोवाइड्स नॉलेज। नाउ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, दिस कोर्स और दिस discipline, please do not get confused if I say discipline. Discipline means course. So this discipline explores ways to improve democratic institutions and practices, ensuring they remain responsive, transparent and accountable to the people. देखिए, डेमोक्रेसी क्या है? अगर मैं इसको डिफाइन ना करूं, सिंपली पूछूं व्हाट इज डेमोक्रेसी, आप कहोगे एक्चुअल पावर इन द हैंड ऑफ द सिटीजन ऑफ द स्टेट। सिटीजंस ऑफ द स्टेट, जो लोग हैं वहां पर निवास, जो जनता करती है, उसके हाथ में एक्चुअल पावर, दे फॉर्म द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अंतर्गत हम बात करें या हम डेमोक्रेसी की बात करें, तो डेमोक्रेसी को जो स्ट्रेंथनिंग की बात हमने करी है, डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाने की जो हमने बात करी है, वो पॉलिटिकल साइंस ही ऑप्सिटी में प्रोवाइड करता है। तभी हमें अपने बारे में, अपने लोकतंत्र के बारे में, अपने ड्यूटीज के बारे में, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हमें पता चलता है। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस जो कोर्स है, डेमोक्रेसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट्स अ लॉट। नाउ we move to our further या नेक्स्ट पॉइंट, which is addressing contemporary issues, जो हमारे समकालीन मुद्दे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात हम पहले कर लेते हैं। इट इन्वेस्टिगेट्स द रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑफरिंग स्ट्रेटजीज फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, पीस बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग स्टेबिलिटी विद इन द बिटवीन नेशंस। तो सीधी सी बात है, जब से पॉलिटिक्स है, जब से इंसान है, ये बात अरस्तु भी कहते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स या क्या ले सकते हैं, मतभेद हमेशा से रहे हैं। जहां पर इंसान है, जहां पर लोग हैं, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स विल अराइज, नो डाउट, डेफिनेटली। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, बट उनका रेजोल्यूशन भी हमें चाहिए, उसका रिजॉल्वमेंट चाहिए, उसको हम पैचअप करना है, वी हैव टू एबॉलिश दोज कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो वो चीज जो है, दैट इज, या कह लीजिएगा, if I talk about the conflicts resolutions, so political science is the course which also provides an opportunity to all of us that how to resolve the various conflicts which occur between states or let's say citizens of the nation or country. Now we move to our next session, next heading, global challenges. So political science addresses pressing global issues like climate changes, international security, and human rights, providing frameworks for international cooperation and policy making. ओके, तो जैसा कि भी मैंने आपसे कहा भी था कि प्रेजेंट सिनेरियो में हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन एक कोई लिमिटेड एस्पेक्ट्स नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन इज इन एवरी फील्ड, चाहे कोई सा भी फील्ड हो। इवन in present scenario, globalization impacts, has got many impacts on education. ठीक है, it also affects the education process systems and all.
तो as far as political science is concerned, तो political science addresses pressing global issues like climate changes, international security, जैसा कि मैंने आपको बोला, बहुत सारे हमारे इश्यूज हैं जो ग्लोबल लेवल पर रिजॉल्व किए जाते हैं या उन चैलेंजेस को हम फेस करते हैं और एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमारे पॉलिटिकल डिसीजंस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है. नाउ व्हाट आवर नेक्स्ट हेडिंग सेज, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी नीड इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो एनालाइजिंग इनइक्वलिटीज. तो द फील्ड या पॉलिटिकल साइंस scrutinizes social inequalities and advocates for policies that promote inclusivity and social justice, addressing disparities based on race, gender, class and other factors. समाज है, आपको पता है समाज में वर्ग विभेद भी है, वैदिक काल से ही चलता आ रहा है. विभिन्न जेंडर, सोसाइटी, रंग, रूप, भाषा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की हम बात करते हैं तो समानता नहीं है. बहुत सारे उसमें कह लीजिएगा इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर, या हम कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. तो समाज अलग अलग वर्गों में, छोटे छोटे वर्गों में, बड़े बड़े वर्गों में विभाजित है या एक क्लास है उसकी. अब बहुत सारी इंक्लूडिटीज भी हैं, इन एक्विलिटीज भी हैं जो हमारा कह लीजिएगा कि जब से इंसान है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी जाति श्रेष्ठ है, या मेरी भाषा श्रेष्ठ है, या आई बिलोंग टू ए वेरी रॉयल फैमिली. तो इस तरह की जो सिचुएशन जब क्रिएट होती है समाज के अंतर्गत, तो पॉलिटिकल साइंस ही, मैं बोलूं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कह लीजिएगा जो इनइक्वलिटीज हैं इनको सॉर्ट आउट करता है. ठीक है, समाज में समानता लाता है. ये बहुत ज्यादा. अब अपने संविधान की बात कर लीजिए. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, तो वो सबसे अच्छी, अगर मैं आपसे पूछ की बात किया समाज में, तो वो कंसेप्ट कह लीजिए या मैं कहूँ कि उसका जो निर्माण ही हुआ इसलिए हुआ कि समाज में समानता हो. यू नो ऊंचा होना, नीचा होना, छोटा बड़ा, छुआछूत, ये सब जो चीजें खत्म होनी चाहिए. तो सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सो दिस वे इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, आई एम श्योर यू आर getting my point. If any confusion, please let me know. Now, campaigning human rights. तो अगर हम इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें या हम इसकी नीड की बात करें, तो अगर हम कैंपेनिंग ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो व्हाट इट सेज, इट फोकसेस ऑन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, examining the role of international laws, treaties and organizations in upholding these rights. ठीक है, इट फोकसेस ऑन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. हमारी सीधी सी बात है, ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें, जो हमारे अधिकार है, जो हमारे राइट्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं. कुछ हमारे पास इंटरनेशनल लॉज भी हैं, हम इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात भी करते हैं. तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो कैंपेनिंग ह्यूमन राइट्स है, तो यानी कि ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत जो हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसका पीछे पर्पस केवल यही है कि जो हमारे राइट्स हैं या जो हमारे को हमें मिलना चाहिए, जो हमारे अधिकार है, वो सबको विद इन रीच हो, सबको मिले, एक समान स्तर पर मिले. ठीक है, तो दैट आल्सो वी कम वी कम टू, तो कह लीजिए वी गेट अपॉर्चुनिटी टू नो थ्रू पॉलिटिकल साइंस, इजंट इट. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज एडवांसिंग नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग. अब हम अगर इसकी बात करें तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. रिसर्च एंड एनालिसिस. तो पॉलिटिकल साइंस जो कोर्स है, पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं तो फिर मैं कह रहा हूं कि आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर मैं कोर्स या डिसिप्लिन इसको संबोधित करूं. दिस डिसिप्लिन फोस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन assumptions, analyzing diverse perspective and develop well informed arguments. So if we go through the contents of the political science, if we study the political science, तो क्या होता है, it provides an opportunity, it provides a very golden opportunity, imperative opportunity to our students to develop their critical skills, analyzing abilities. They can apply the thing, they can evaluate the thing, they can form the hypothesis, they can analyze the things, they can conclusion. So इसमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, क्योंकि आप ये देख लीजिए जो भी हमारी पॉलिसीज बन रहा है, जो पॉलिसीज का निर्माण हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स का रेजोल्यूशन हो रहा है, पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना.
उसके लिए हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी ही होनी चाहिए. इट इज अ, आई वुड से दैट imperative, inevitable quality of a political science to develop the critical thinking. Okay, now move to our next heading, which is करियर अपॉर्चुनिटीज. तो नो डाउट करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो बड़ी सिंपल सी बात है. इफ यू इंक्लूड दिस पर्टिकुलर हेडिंग, मैंने अभी जैसा आपको बताया था कि आप कभी भी बात करें, जितनी भी बात करें, आप किसी भी एग्जाम्स की बात करें, स्पेशली कुछ सिविल एग्जाम्स की बात करें, आप आईएएस की बात करें, पीसीएस की बात करें, या किसी भी कॉम्पिटिशन्स की बात करें, स्पेशली गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन्स की बात करें, तो पॉलिटिकल साइंस वी हैव टू स्टडी विदाउट एनी एक्सक्यूज. ठीक है. अब इसमें तो नो डाउट है, अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, हम एग्जाम में अपियर होंगे, विल फेस द क्वेश्चंस एंड ऑल, तो सीधी सी बात है, विल क्वालिफाई ऑन दोस, विल क्वालिफाई those examinations, will get through in those examinations and will be hired, कह लीजिएगा, in such a good companies, या हम will get the opportunity to get in the government jobs and all. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. करियर अपॉर्चुनिटी हमारे रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है पॉलिटिकल. बड़ी सिंपल भाषा में मैं आपके सामने कहना चाहूंगा. नाउ academia and research. Many political scientists contribute to academic knowledge, teaching future generations, and conducting research that informs public policies and societal norms. Okay, now private sector media, what it says, skill acquired through political science are valuable in the private sector, particularly in roles related to the corporate governance, public relations, and media analysis. Political analysis and commentators help shape public opinion and inform the public. So it is all about the public and media. Political science की अगर बात करें, जब मीडिया प्रोफेशन हो, they have to study the political science. बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होती है उनको रिसर्च में. हमारे एकेडमिक की बात हम करें, वही चीज़ ये कह रहा है वाली हेडिंग, वही बात कर रही है. तो उसके लिए भी पॉलिटिकल साइंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, no, as far as need and importance of political science is concerned. Now the next heading, ensuring effective policy making. ठीक है. तो what it says, that policy formulation and evaluation. So political science provides the tools to understand how policies are formulated, how policies are implemented, how evaluated, ensuring that they effectively address सोसाइटिकल नीड्स एंड चैलेंजेस. तो पॉलिसीज का फॉर्मेशन मैंने पहले ही बताया कि इट्स ऑल अबाउट द पॉलिसी मेकिंग. बहुत सारी पॉलिसीज मेकिंग होती है, कैसे बननी है, क्या इनके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कौन सी पॉलिसी को प्रायोरिटीज देनी है, उसका फॉर्मेशन कैसे होना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है, फिर इवेल्युएट कैसे करना है, उसका इफेक्टिवनेस को कैसे करना है, उसका मेजरमेंट कैसे करना है. इट्स ऑल अबाउट दी, कह लीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस. तो उसके अंतर्गत ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है कि एज फार एज पॉलिसीज मेकिंग आर कंसर्न, फॉर्मेशंस आर कंसर्न, और साथ में इसका एग्जीक्यूशन है, तो वो भी अच्छे से हो, तो वो हम पॉलिटिकल साइंस के थ्रू ही पॉसिबल कर पाते हैं. नाउ नेक्स्ट हेडिंग, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग. So this field emphasizes the importance of evidence-based policy making using empirical research to inform decisions and improve governance outcomes. जो भी कुछ डिसीजन है हम ऐसे ही नहीं मान लेते. जैसे कि मैं बात करता हूँ प्रेजेंट सिनेरियो में, जो पॉलिटिकल साइंस है, इट हैज गॉट साइंटिफिक बेस, इसका कुछ वैज्ञानिक आधार है. और जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल प्लस साइंस, तो आपको पता है कि इसमें सिस्टमेटिक स्टडी किया जाता है, इसमें भी शोध होते हैं, रिसर्च होता है, आपको पता है, इसमें हाइपोथेसिस का निर्माण होता है, डेटा एनालिसिस वगैरह हम इसमें करते हैं. तो जो भी कुछ डिसीजन लिए जाते हैं वो दैट इज बेस्ड ऑन एविडेंस. ठीक है. एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग इज द, कह लीजिएगा, बेनिफिट या नीड विच इज सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन. नाउ in our last heading, we will understand the need and importance of the facilitating international relations. ठीक है. तो facilitating international relations talks about the diplomacy and international affairs. Political science is essential for understanding international relations, fostering diplomacy, and managing global reactions or global interactions. It helps in navigating the complexities of international policies and fostering peaceful coexistence. वही बात घूम फिर कर आती है, हम कोई अकेला देश नहीं है, अकेले कंट्री नहीं है. दिस इज द सिनेरियो जहाँ पर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हम
केवल नेशनल अफेयर्स की बातें नहीं करते हैं, हम डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल अफेयर्स की बात भी हम करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसीज है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसको समझने में भी हमें पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है हायर स्टडीज में। हालांकि लोअर स्टडीज में चलो हम इसको, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स, बट हायर स्टडीज के लिए इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कोर्स। तो जहाँ तक फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस है, कैसे हम उसको मैनेज करते हैं, कैसे सामंजस्य, हाउ टू बी एडजस्ट विद आवर इंटरनेशनल रिलेशंस, you know that is all about the politics. So if you want to maintain or if you want to facilitate the international relations, international affairs, so it means we will have to study the political science. या मैं इसको, in other words we can say that political science provides an opportunity to us, to all of us, to facilitate our international relations. So this way we come to the end of today's sessions, which was, you know uh, based on need and importance of the political science. I'm sure you would have enjoyed the sessions. अगले सेशंस में हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसकी हम चर्चा करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।